So BJP is inching towards a big victory. They are close to 125 seats, and this is something unbelievable even for the BJP itself that they could come up with such a huge number of seats. Now the biggest question is that who is going to be the next Maharashtra Chief Minister? Eknath Shinde, who is the Chief Minister, and then Devendra Fadnavis, whose party has gained 125 seats in the alliance. 145 is the only number that they have to achieve, that they have achieved very easily with the alliances, where Shiv Sena of Eknath Shinde has got around 55 seats. So we'll ask the supporters who do they want to be the new Chief Minister of Maharashtra. So what is your name? My name is Yash. Basically, I come from Palghar district. As I am a student, I'm studying over here, and I'm also a very big supporter of the Bharatiya Janata Party. As I'm working from 2014, got motivated by Prime Minister Modi, and I've joined this party, and I'm working towards this. As I see the result, it's more than 217 nearby, and BJP is a single party. It's getting more than 125 seats, so there is a possibility of. If you ask me, I want the Devendra Fadnavis should be the Chief Minister of this Maharashtra. As I see in 2014 to 2019, the governance of Devendra Fadnavis, it was a very best and excellence in that the Maharashtra was on the top in each and every sector. I want to ask you one thing. You said you're from Palghar. Yeah. So Palghar is known or remembered for one of the incidents where a saint or the priest was literally burned to death. So that sort of incident, it had some impact on 100%. The Sadhu Khan had happened in Palghar. You see in 2024, the Lok Sabha election, in that also Bharatiya Janata Party won the seat over there. All the Hindus were all together. they came together. So Together. we एक साथ आए Yeah. और Again, the Prime Minister gave one nara call, हम सब एक है. So in that also एक है तो safe है. safe है. In that also the people of Palghar voted for Mahayuti and they got the very big margin of victory over there. तो ये बताओ आप कि जो दो नारे सबसे ज्यादा चले इस इलेक्शन में, एक तो बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा एक है तो सेफ है, तो ये दोनों में से कौन सा नारा काम किया? मुझे लगता है दोनों नारा काम किया कि अपोजिशन ने जिस प्रकार से फतवा द वोट जिहाद का ट्राई किया था और उस प्रकार जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में हर एक हिंदू एक साथ आके अपोजिशन को उनकी जगह दिखा दी है. तो ये जीत विकास की हुई है या हिंदुत्व की हुई है? मैं बोलता हूँ जहाँ हिंदुत्व होगा वहाँ तो विकास डेफिनेटली होगा. विकास और हिंदुत्व को आप अलग नहीं रख सकते, वो एक ही है और उसको एक साथ ही चलना पड़ेगा. और अब जब हिंदुत्व की बात चल ही रही है तो ये बताइए कि ऐसा भी है कि उद्धव का जो हिंदुत्व है, जो मतलब एक बाला साहब ठाकरे के समय था, उस चीज़ को अब लोगों ने नापसंद कर दिया. हाँ 100%. उनका अभी ज़्यादा झुकाव ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर वो टोपी वाले साइड ज़्यादा हो चुका है उस वजह से. और हिंदुत्व एक है, और ये बाला साहेब ठाकरे जो ब्रांड एम्बेसिडर है हिंदुत्व के, जिन्हें कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनके लड़के को ये हिंदू हृदय सम्राट लगाने के लिए भी शर्म आ रही है उनके पापा के सामने. तो ये कैसा हिंदुत्व है उनका? सो बहुत खफा लग रहे हैं वैसे जिस तरीके का जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनके हिंदुत्व को लेके, जो शिवसेना का जन्म हुआ था वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही हुआ था और शिव सैनिक बने थे लोग. सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. थैंक यू सो मच. एकनाथ शिंदे की फडणवीस? शिंदे का नाम ज्यादा. शिंदे, लेकिन बीजेपी को तो बहुत ज्यादा नंबर मिले हैं, फडणवीस साहब बने. लेकिन बीजेपी ही जीतेगी. मैं ये भी नहीं मालूम था कि वो क्या नाम है, शिंदे किस में है, बीजेपी किस में. बीजेपी को मैं जानता हूँ, बीजेपी ही जीतेगी. अच्छा, हाँ इस बार तो थोड़ा खिचड़ी पका है पार्टी में, तो इसीलिए. लेकिन यहाँ से तो बीजेपी का ही पक्का है. सीएम किसको देखना चाहेंगे? सीएम के बारे में मुझे मालूम नहीं कौन यहाँ कैंडिडेट सीएम है. देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? लेकिन बीजेपी का ही प्रत्याशी कोई सीएम बनेगा. बीजेपी मतलब ओवरऑल ये से कि बीजेपी विल विन, दैट इज फॉर श्योर.
बिकॉज द वोटिंग जैसे भाई जी बता रहे हैं कि वोटिंग जो की गई है वो मोदी जी के नाम पे की गई है अकॉर्डिंग टू हिम। सब तैयार हैं, बन रहे हैं। तो आप किसको चाहेंगे? हमको हमारे विचार से देवेंद्र फडणवीस बनेगा। आपने वोट दिया था? हाँ। ओके, और किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? हमने यही दिया था कि मतलब भाजपा सरकार वापस आवे, जो मतलब विकास की गति चल रही है उस पर रुकना नहीं चाहिए। तो ये कटेंगे तो बटेंगे, सॉरी बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। और एक है तो सेफ है, वो मुद्दा नहीं था क्या? नहीं, वो भी मुद्दा था। बड़ा मुद्दा क्या था? विकास की? ये बटेंगे तो कटेंगे? नहीं नहीं, विकास वाला सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है भाई। इसे आगे बढ़ना है तो भाजपा अपनाना। और उद्धव साहब लोगों से क्या मतलब क्या बैर रहा आप लोग का? हम लोग का बैर कुछ नहीं है, हमारे लिए जैसे वो था वो इसे ही है। मगर उद्धव ठाकरे ने बहुत गलती किया महाराष्ट्र के साथ में। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो पहले वो गलती की, उस बार उनका 63 सीट आया था, अब की बार क्यों आया 18? इसके लिए आया। जैसा करनी वैसा बनी। क्या गलती किया सबसे बड़ा? गलती यही की कि मतलब महाराष्ट्र में जनता को धोखा दिए, हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदुओं को बहुत धोखा दिया। जब उन्होंने 2.5 साल पहले, जब उन्होंने हाँ 2.5 साल के 5 साल पहले जब उन्होंने वो चले गए थे कांग्रेस के साथ, बाल ठाकरे के रास्ते को नहीं चला, उनका रास्ता छोड़ा। इसके लिए तो असली उत्तराधिकारी कौन है अब बाल ठाकरे जी का? अब अभी इस मौके पे तो शिंदे चल रहे हैं भाई। शिंदे उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे के आधार पे चल रहे हैं। उद्धव साहब ने बहुत बोला कि मेरे फादर का फोटो लगा करके और तुम वोट मांग रहे हो। नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आदमी उस योग्य था। महाराष्ट्र के लिए 40 साल से रखा उसने। 40 साल जनता के पीछे क्या क्या किया हिंदुत्व के नाम पे, और आज हिंदू सम्राट था जी। और आज उसके विचार से हम लोग सब लोग वोट दिए उसको। भले सिंधे हैं, इससे नहीं मतलब उनके परिवार का नए हैं, उससे हमसे नहीं लेना देना है, और उस विचार से चलने वाली बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। इसके लिए सिंधे को लाना अच्छी बात है, और डबल इंजन की सरकार रहेगी, देश आगे जाएगा महाराष्ट्र। इसमें विपक्ष को देख के कुछ मतलब नहीं था, ये लोग देश को बर्बाद कर देते महाराष्ट्र को। अभी जो गति है वो रुकेगी नहीं, उसी हिसाब से 2029 में भी अब मोदी जी आएंगे क्या? 100%। So this is the biggest reaction that we have got with Maharashtra election कि अब 2029 में भी हो सकता है मोदी जी आए। 75 साल का रिटायरमेंट का अगर उनका उम्र को बदल दिया जाए तो हाँ पार्टी तो वही आएगी, चाहे मतलब दूसरा किसी को भी सीएम बनाए, पीएम बनाए, लेकिन बीजेपी आएगी। 100%। अब चलेगा तो हिंदुत्व ही चलेगा। हाँ, चलना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम हैं तो सब समान है। जात के आधार पे सब समान है, सबके लिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं है जात के आधार पे हिंदुस्तान चल रहा है। अब धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बहुत हो गया है। पहले जात के नाम पे मतलब वही तो आप बोलना चाह रहे हो ना कि देखिए जात के नाम पे क्या है, और बाल ठाकरे जो हिंदुत्व लेके चल रहे थे उसी आधार पे हम लोग भी सोच रहे थे। मगर अभी क्या है, हमारे लिए सब समान माने गए। सरकार का मतलब कोई भी सरकार हो सबके लिए काम करती है, किसी के जात के नाम पे सरकार काम नहीं करती है। मगर सरकार ये है कि अपना जो काम बढ़ाया था, जैसे इसका काम रुका नहीं अभी। हाँ, या दूसरा सरकार आने पे नहीं, काम जितना चालू था, जितना अच्छे काम चल रहे थे, सब में रुकावट आ जाता, क्योंकि सब बंदर बाट हो जाता वापस में। ऐसे है अभी जो हुआ है वही उसी हिसाब से गाड़ी चली। बोलिए बटेंगे तो कटेंगे, बोलिए बटेंगे कटेंगे मतलब ऐसा नहीं है, ये तो राजनीति है। वोट के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, इसे उस समय ऐसा मौका था। चलिए, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट लोग समझते कि ये राजनीति में लोग बोलते हैं, लेकिन ये इसको लिटरली मत लीजिए, लिटरली मत लीजिए इसको। राजनीति में सब बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए भाई, कुछ की हमको उससे फायदा दिख रहा है तो हम ऐसा बोल के, ऐसा नहीं है कि कटेंगे बटेंगे, ये सब बात तो खाली बोलने के लिए, बोल के अपना जनाधार बढ़ाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। राजनीति में ऐसा कुछ बात नहीं है कि जनता के प्रति किसी को तकलीफ, ऐसा नहीं है। चलिए भाई जी, कौन बन रहा है सीएम? सीएम देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे। तो बदलाव में मजा आ रहा है? बीजेपी सपोर्टर हो आप कि आप आम नागरिक हो? मैं तो बीजेपी सपोर्टर है। अच्छा, तो खुशी है? सोचा था इतना बड़ा विक्ट्री होता ही नहीं था तो इतना तो कैसे हुआ? वो बोले तो जो बीजेपी ने काम किया, जो शिंदे गट ने काम किया, जो अजीत दादा गट ने काम किया, वो काम से हो रहा है। लेकिन फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मोदी जी ने बोला सबसे बड़ा मुद्दा ये ऐसा है कि जो लाडली बहन का जो योजना दिया गवर्नमेंट ने, तो सबसे अच्छा दिया, क्योंकि दिवाली के टाइम पे किसी के पास पैसा नहीं रहता है,
आम गांव में। जी। हाँ, तो वो पैसा तो सबसे अच्छा रहा। तो वो दिवाली के वो समय दिवाली आया, में उससे दिवाली के बहुत समय लोग खुश हुए। 7,500 का पूरा किराना हो गया हमारे घर में। हाँ, तो दिवाली के समय जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि दिवाली के समय जो है योजना के तहत जो पैसे आए वो भी एग्जैक्टली दिवाली के समय, और उससे बहुत मदद मिली लोगों को, स्पेशली गांव में जो दिवाली मनाना चाहते थे कि उनका किराना का पूरा सामान पूरा हो जा रहा है। 7,500 रुपये बड़ा 7,000 रुपये मैटर करता है। और मैटर उसमें करता हमको है। गैस सिलेंडर मोदी जी ने दिया। वो गैस सिलेंडर कभी मालूम नहीं था। लेकिन फिर नारा जो वोटिंग हुई है वो किसके नाम पे हुई है? वो वोटिंग सिर्फ मोदी जी के नाम पे हुई। बटेंगे तो कटेंगे के नाम पे नहीं। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, लेकिन कटेंगे तो बटेंगे, ऐसी बात हो गई थी। हाँ? हाँ, तो जिताने वाला कौन है? मतलब कि ये हमारा विकास, डेवलपमेंट, लाडली योजना की आपका बटेंगे तो कटेंगे नारा। लाडली योजना का जो पैसा दिया वो सिर्फ मोदी साहब ने दिए वाला है, ऊपर से शिंदे साहब को। और शिंदे साहब ने वो पैसा इधर गवर्नमेंट। भरोसा फडणवीस साहब पे है कि मोदी साहब पे है? भरोसा तो मोदी साहब पे ही रहेगा ना। मेन मुखिया वही है ना, मेन मुखिया तो वही है हमारा, मेन मुखिया वही है हमारा। अच्छा, हाँ, मतलब भाई साहब लिटरली बता रहे कि जो जीत का एक रीजन है मोदी जी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, एंड दैट्स व्हाई दिस सक्सेस दैट बीजेपी इज सीइंग। ऑफ कोर्स देयर इज दैट बटेंगे तो कटेंगे का नारा which has worked, as the young man was saying earlier. So we'll speak to more people. What they think, who should be the CM? सर CM कौन बनेगा? CM कौन बनेगा? तो मैं भी नहीं पता था राजनीति किसको चाहोगे आप? किसको चाहोगे? कोई तो आएगा ना। लेकिन जैसे एकनाथ शिंदे हो गया या फडणवीस साहब हो गया, किसको? दोनों में से एक तो शिंदे हो सकते हैं, तो फडणवीस हो सकता है, और जी। कोई नहीं। आपको पसंद कौन है? अभी पसंद की बात बोलोगे तो अब मैं शिंदे ही बोल दूंगा। हाँ, तो वही कि पसंद कौन है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। So this is the mood at the moment at Nariman Point. We are near the BJP office, and as you heard, most of the people, Hindutva is a big issue. They have already said that mostly they voted on this issue, that most of the journalists, even us, fail to understand that where is it all going. But if we analyze from our end few of the things, when we see the Rajasthan election and then the Maharashtra election, both parties at both places they were talking about the yojana of providing 1,500. Then the Congress and Uddhav Thackeray, Shiv Sena said that they will pay 3,000 per month in that Ladli Yojana. But the fact is that the people believed, those who have already started benefiting the lower strata of the state. The same happened in Jharkhand, that all those places where Maiya Yojana was going on and Hemant Soren government was providing all the help through the Yojana, the same happened here. So people have believed to those who have already given them all this sort of help and the money, not those who are making these promises. One of the biggest things, and the other of course is this Hindutva, the talk of Hindutva, that most of the people do not agree with the Hindutva that Shiv Sena UBT has chosen, and their stance on Hindutva has diluted. That is for the first time for us even to understand that the Muslims are the favorite voters of Aditya Thackeray or Uddhav Bala Saheb Thackeray. This is Nagain Singh with Kausar Alam for One India. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.